गुरु वाहे 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 गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की किरपा दे नाल चल रही लड़ीवार अरदास के विचार के अंदर आपां कल का जो विशा विचारिया सी वो सी पंथ की जीत। पंथ की जित तां होवेगी जदों असीं पंथ के प्रति समर्पित होवांगे, साडा विश्वास होवेगा कि असीं जिस मार्ग के उत्ते चल रहे हाँ वो मार्ग सच्चा है, तो उस मार्ग नूं दृढ़ कराउण वाला आप अकाल पुरख परमात्मा है। खालसा उसे ने साजिया है, वाहिगुरु जी का ही खालसा है, तो वाहिगुरु जी की किरपा दे नाल ही फतेह मिलेगी। पर इस दे वास्ते समर्पित होना साडा जरूरी है। असीं समर्पित होवांगे, सानू विश्वास होवेगा अपने अकीदे दे उत्ते, ते साडे उत्ते फिर परमात्मा की भी किरपा वरसेगी। इसलिए ये कहा जाता है जिहड़े गुरु नूं प्यार करन वाले, गुरु दे वास्ते जाना वारन वाले हैं, उन्हां दे वल्लों कि कलगीधर पातशाह जी ने अपना सरबंस वार दिता, पर जिहड़ा मार्ग धन गुरु नानक पातशाह जी तो दृढ़ होया सी उस मार्ग तो पिछां नहीं हटे। तो उन्होंने ये वचन कहे सन कि पंथ बसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। उन्होंने इस सोच दे नाल कि पंथ सदा चढ़दी कला दे विच रहे ते अपना सारा कुछ वार दिता, ते अज साडे स्वार्थां करके पंथ जिहड़ा पिछां नूं जा रहा है, उस दे वास्ते असीं ये सोच रखते हैं कि मैं बसां पंथ उजड़े, मैनू सिर्फ अपने नाल मतलब है, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए है, बाकी पंथ चढ़दी कला विच जावे जां ना जावे, पंथ दे अंदर एकता रहे जां ना रहे, मैनू उस दे नाल कोई सरोकार नहीं है, मैनू उस दे नाल कोई मतलब नहीं है। जदों असीं इस सोच दे नाल पंथक बन के जीवांगे तो फिर कदे ना तो साडा भला हो सकेगा, इकल्ला रह के कोई भी संसार दे अंदर सफल नहीं हो सकता। एकता जिहड़ी है वो जरूरी है, तो जे असीं एकता दे भाईवाल ही नहीं होवांगे, केवल अपने आप दे मनोरथ ही पूरे करन दी सोच रखांगे, फिर ना तो असीं कदी अपना भला कर सकते हैं क्योंकि असीं गुरु के सिद्धांत तो बेमुख होए हाँ, तो ना ही फिर साडे वल्लों कदी कौमी कारजां दे विच कोई हिस्सा पाया जा सकेगा। इसलिए
ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾਨ, ਖੜਗ, ਤੇਗ, ਤਲਵਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲక్ష్ਮੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਗ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਖੜਗ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ। ਹੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਰਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਅਸ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੰਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ 1699 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 5 ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਹੀ ਸੀ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਢੰਗ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
इस ਲਈ आत्मिक बल का भी तो शस्त्र बल का भी होना साढ़े कोल जरूरी है। तो जिहड़ी साडी किरपान है ये मीरी अते पीरी की लिखाइक है। भाव किरपान जिहड़ी है सानू शस्त्र चलाउणा भी सिखाउंदी है, तो किरपान जिहड़ी है शक्ति सानू अकाल पुरख परमात्मा नू ध्याउणा भी सिखाउंदी है। कदे भी सिख जिहड़ा है वो अपने किरपान नू म्यान दे विचों बाहर उस वेले कढ़दा है जदों किते जुल्म हो रहा होवे, उस जुल्म नू रोकण दे वास्ते, अपने बल दे प्रदर्शन दे वास्ते जां निहत्थियां दे उत्ते असीं पिछे पढ़ के आए हाँ। जदों वो काजी नूर मुहम्मद ने सिखां दी वडियाई कीती कि ये निहत्थे दे उत्ते वार नहीं करदे, कमजोरे दे उत्ते वार नहीं करदे, जिहड़ा मैदान तो भजदा होवे उस दे उत्ते भी वार नहीं करदे, इस्त्रियां दी पत भी नहीं लुटदे, उन्हां दे गहणे तक भी नहीं लुटदे। इहो जिहा किरदार है सिख दा। ते इस किरदार नूं जिहड़ा है वो उच्चा सुच्चा रखण दे वास्ते सानू मीरी पीरी का सिद्धांत दिता गया। आत्मिक तौर पर भी तो सरीरक तौर पर भी सानू पहला बलवान बनाया गया, फिर सानू साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने शस्त्र पकड़ाए। तो कलगीधर पातशाह महाराज जी ने भी ये वचन कहे सन कि जब हमरे दर्शन को आवो बन सुचेत भाव सावधान होके तन शस्त्र सजाओ। सावधान होके अपने तन के उत्ते सोहने शस्त्र सजा के ही मेरे दीदार करन दे वास्ते आओ। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने तो इत्थे तक वचन किए सन कि जिहड़ा सानू भेटा शस्त्र करेगा, वधिया घोड़े करेगा, अपने नौजवान पुत्र भेटा करेगा, साड़ी उस दे उत्ते खुशी ज़्यादा होवेगी। जिहड़े केवल माया चढ़ाउंदे हन जां बाकी गुरु घर दे अंदर भेटावां करदे हन, उन्हां दे नालों ज़्यादा साड़ी खुशी उस दे उत्ते होवेगी जिहड़ा गुरु दर ते आके शस्त्र चढ़ावेगा, सोहणे घोड़े लियावेगा, सोहणे पुत अपने गुरु चरनां दे विच आके भेटा करेगा कि मेरा पुता तुहाडे अगे भेटा कीता है, हुण तुसीं इस नूं किस तरीके दे नाल तैयार करना है, ये गुरु पातशाह जी दी आप जी दी मर्जी है। जिहड़ा इस तरीके दे नाल आके भेटा करेगा उसनूं मेरे वल्लों ज़्यादा किरपा प्राप्त होवेगी। ये धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने सिखां नूं वचन कीता सी। इसलिए अरदास दे विच जिहड़ा है उस श्री साहिब दा जिहड़ा है वरत्या गया है कि उसनूं श्री साहिब जी सहाय, वो सदा साडी किरपान जिहड़ी है वो सहायक होवे। ये सानू आत्मिक बल भी दिंदी है, गुरु दे वल्लों दिता होया सानू ककार भी याद कराउंदी है, ते नाल दुष्टां दा दमन करन दे वास्ते भी प्रेरित करदी है कि जिथे जुल्म हो रहा होवे उत्थे कोई दूसरा खड़े जां ना खड़े, सिख दा फर्ज बनता है कि जुल्म दा टाकरा करन दे वास्ते खड़ा हो जावे। जदों आपां गल करदे हां अहिंसावाद दी, महात्मा गांधी नूं अहिंसावादी मन्निया जाता है। उस दे बारे भी डॉक्टर राधा कृष्ण ने अपनी किताब दे विच लिखिया है कि महात्मा गांधी ने भी अजोके युग विच जिहड़ा है ये कबूल किया सी कि मनुख नूं अहिंसावादी होना चाहिए है पर कायर नहीं होना चाहिए। जिहड़ा मनुख कायर है वो अहिंसावादी भावें हो जाएगा पर वो अपनी अणख आबरू नूं जिहड़ा है कदे भी बचा नहीं सकता। इसलिए कायर बंदे नूं अहिंसावादी कह देना ये सही अखर जिहड़ा है वो नहीं है, क्योंकि वो तो डरपोक है, लड़न तो पहले ही डर रहा है तो वो अहिंसा किवें कर सकता है। अहिंसावादी वो होवेगा जिस दे कोल ताकत है, जिस दे हत्थ दे विच शस्त्र है, हथियार है, तो वो तां भी जिहड़ा है किसी दे उत्ते अपनी जोर अजमाइश नहीं कर रहा, किसी ने हत्थे नूं मार नहीं रहा, किसी का हक खाण वास्ते उसका कतल नहीं कर रहा। ये अहिंसा है। केवल डरदियां मारे अपने घर के अंदर बैठ जाना ये अहिंसा नहीं है, ये डरपोकता है। सानू गुरु पातशाह ने डरपोक नहीं बनाया,
बहादुर भी बनाया, मीरी की ताकत भी दी है, तो नाल नाल पीरी की ताकत भी दी है, संत भी बनाया है तो सिपाही भी बनाया है। इसलिए अरदास दे विच असीं कहने आ कि श्री साहिब जी सहायक किरपान जिहड़ी है वो साडी सदा दे वास्ते सहायक है। जदों सिखां दे नाल मुगलों की बहुत वड्डी जंग चल रही सी, ते जिहड़ा दीना वेग है उसने सरदार जस्सा सिंह जी नूं एक चिट्ठी लिखी सी कि खालसा जिहड़ा है वो लड़ाई का रास्ता जिहड़ा है उसनूं छड्ड देवे, इस दे नाल सिखां दा नुकसान हो रहा है। तो जदों ये गल जस्सा सिंह जी ने पढ़ी चिट्ठी दे विच, ते उन्होंने अगों चिट्ठी के राही जवाब दिता सी कि खालसा जिहड़ा है वो कदे भी दिल्ली दरबार की जिहड़ी है अधीनगी स्वीकार नहीं करेगा। खालसा तो पैदा ही किरपान की धार दे विचों होया है, ते योधियां दे जिहड़े हन ये मुलाकात जंग के मैदानां दे विच होवेगी। ते जदों खालसे की तेग चलेगी फिर खालसे के कदमां दे विच दिल्ली अपने आप आके झुक जाएगी। तो इतिहास इस गल का गवाह है कि 19 वार खालसे ने दिल्ली नूं जितया है, तो जित के पर कदे राज नहीं किया। हुणे पिछे जो किसान अंदोलन होया सी, भावें उसनूं बहुत तरीके दे नाल मीडिया दे वल्लों पेश किया गया, पर किसी का भी नुकसान करन तो बिना जाके लाल किले के उत्ते कब्जा कर लिया सी किसान सिखां ने। 20वीं बार ये दिल्ली के उत्ते सिखां ने जित की, ते तां भी बिना कुछ नुकसान किए बाहर आके उस लाल किले नूं खाली कर दिता। ये ताकत है सिखां दे कोल, पर वो ताकत तां होवेगी जदों सानूं गुरु बचनां दे उत्ते भरोसा होवेगा, असीं गुरु दे सिद्धांत नूं दृढ़ करके अपने जीवन दे अंदर चलांगे, तां श्री साहिब जी सहाय होंगे। अगला अखर है खालसा जी के बोल बाले। बोल तो भाव है आवाज़, ते बाले जिहड़ा शब्द है वो फारसी का शब्द है, भाव उच्ची आवाज़। बोल है आवाज़ ते बाले है जिहड़ा है उच्ची। जदों भी असीं जकारा गजाउने हाँ, ते जकारा जदों भी गजाया जाए उसनूं उच्ची सुर दे विच गजाउणा चाहिदा है। कई बार जदों कीर्तन चलदा हुंदा है, वैसे तो कीर्तन चलदे विच जे असीं गुरबाणी दे सिद्धांत नूं समझांगे तो कदे भी शब्द की समाप्ति तो बाद जकारा नहीं गजाउणा चाहिदा। कीर्तन जिहड़ा है असीं परमात्मा की कीर्ति करदे हां, ते कीर्ति करदिआं साडी परमात्मा दे चरनां दे विच लिव जुड़नी चाहिदी है। तो जदों साडी लिव जुड़ गई तो दूसरे बंदे ने कोल बैठे ने जकारा छड्ड दिता, तो साडी लिव तो टुटेगी, बाकी होर भी जिहदी टुटी जुड़ी होवेगी उहदी भी टुट जाएगी। क्योंकि जकारा जिहड़ा चढ़दी कला का प्रतीक है। जदों भी जंगां दे विच सिंह जांदे सन तो उच्ची धुन दे विच जकारा गजाउंदे सन, तो अद्धे जिहड़े दुश्मन सन वो इसे गल तो ही डर जांदे सन कि जे आवाज़ इन्नी आई है तो इन्हां दी गिणती कितनी होवेगी। 10 लाख की फौज सी, चमकौर की कच्ची गढ़ी के दिवाले, तो अंदर केवल 40 तो 43 सिंह सन। उन्होंने एडी उच्ची आवाज़ दे विच जकारा गजाया कि मुगलिया जिहड़ी फौज सी उसनूं ये चिंता हो गई सी कि सानूं ते पता लगा सी कि थोड़े जे सिंह हन, जिड्डी उच्ची आवाज़ आई है इस दे अंदर तो बहुत सैकड़े की गिणती के अंदर सिंह हो सकते हैं। जकारा चढ़दी कला दे वास्ते जगाया जाता है। तो असीं जदों शब्द खत्म होंदा है तो कई बार तो रागी सिंघां ने शब्द भी खत्म नहीं किया हुंदा, असीं विचों ही जकारा छड्ड दिंदे हां। जकारा चढ़दी कला दे वास्ते गजाया जाता है, तो ये खालसे का बोला है कि इसनूं उच्चे तरीके दे नाल गजाया जाए। तो बोले का दूसरा मतलब ये भी है कि जकारा जिहड़ा है भाव जिहड़ा बोल है साडा वो सच्चा भी होवे। केवल उच्ची आवाज़ दे विच ही नहीं, उच्ची आवाज़ दे विच बहुत सारे लोग तुहानूं गालां कढ़दे भी दिखाई देणगे, लड़ाई करते भी दिखाई देणगे,
केवल उच्ची आवाज़ का हो जाना ही बोलबाला नहीं है। खालसे दे बोलबाले भाव सच्चे बोलों का होना भी जरूरी है। जे साडे कोल बोल सच्चे नहीं हैं तो साडे बोलों का किसी के उत्ते असर भी नहीं होगा। इसलिए जदों असीं सच्चे हाँ तो साडे बोलों के उत्ते किसी दूसरे का भी प्रभाव नहीं पै सकता। असीं सच्चे होवांगे तो असीं जिथे भी जरूरत होगी उत्थे जाके सच दे पासे खड़ के सच्चे बोल बोल सकांगे। तो जे अंदरों असीं झूठे होवांगे, अंदर साडे सच नहीं होवेगा तो साडा मन सच वाले पासे खड़न तो डरेगा, क्योंकि साडी पोल भी खुलेगी, साडे भी कर्म लोगों ने देखे होणगे। इसलिए केवल बोल ही उच्चे नहीं, कर्म भी उच्चे होने साडे जरूरी हैं। तो बोल जिहड़े हैं जदों असीं अपने बोलांगे, सच्चे बोलांगे तो लोगों के उत्ते उसका प्रभाव पवेगा। जदों भारत देश गुलाम सी, धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी का समा सी, उस वेले गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने कृपा की। ये बचन बाणी दे अंदर लिखे हैं कि घर घर मीयाँ सबना जियाँ बोली अवर तुम्हारी। जदों मुगलों का राज हो गया तो लोगों ने अपनी बोली बोलनी छड़ के सारिਆਂ ने एक दूसरे नूं मियाँ मियाँ जां उन्हां दी बोली दे विच बोलना शुरू कर दिता कि वो खुश हो जाण ताकि साडी जान बच जाए। ये भी खालसे का किरदार नहीं है। जदों मीर मनु की जेल अंदर ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਚਾਰ ਪੈਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बोली बोलनी शुरू करन लग पे सन। पातशाह जी की पावन बाणी का शब्द धनासरी राग के अंदर आप सारे ने पढ़िया कि खत्तरियां तां धर्म छोड़िया मलेश भाखिया गही। मुसलमानों नूं उस वेले मलेश कहा जाता सी। खत्तरी जिहड़े सन उन्होंने चार वर्णां दे विचों बहादुर गिणिया जाता सी कि इन्हां दा कर्म ही रखिया करनी है, युद्ध करके जंग करके प्रजा की बाकी की रखिया करनी। तो जदों उन्हां दा राज होया तो इन्हां ने भी अपना खतरी धर्म छड्ड के, लड़ाई वाला धर्म छड्ड के मलेश भाखिया गई। उन्हां दी मुसलमानां दी बोली बोलनी शुरू करती, मुगलों की बोली बोलनी शुरू कर दी, भाव उन्हां वाले पासे जाके खड़े हो गए सन। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने कृपा की। आसा जी की वार असीं रोज़ सुनते हाँ। उस दे अंदर पातशाह जी कृपा कर देन, अभाखिया का कुट्ठा बकरा खाना चौंके उपर किसे न जाना। जिहड़े पंडित सन वो कुट्ठे का हलाल किया होया बकरा ते मास ते खा लेंदे सन, पर अपने चौंके दे उत्ते किसी शूदर नूं नहीं जाण दिंदे सन। तो यह भी तो एक जीवन के अंदर किरदार के अंदर दोगलापन है कि अपना धर्म छड्ड के दूजियां दे धर्म के नाल अनुसार अपना खाना पीना शुरू कर लिया। तो ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ जात वाले जिन्होंने कहते सन, जिन्होंने छोटियां जातां वाले कहते सन, उन्हां तो नफरत करते सन कि साडा चौंका ना भिट जाए। ये भी तो जीवन के अंदर किरदार का डोलना ही है। तो जे इहो जिहा किरदार होवेगा तो फिर खालसे दे बोले जिहड़े हन वो कदे भी उच्चे नहीं हो सकते। खालसे दे बोले उच्चे तां हन जे किरदार सच्चा है, साडी जवान अपनी है। इसलिए बार बार बेनती की जाती है कि भाई अपनी माँ बोली के नाल जुड़ो। जदों अपनी साडी बोली रहेगी, अपना साडा किरदार रहेगा, अपना साडा सिक्खी का सिद्धांत रहेगा, गुरु का उपदेश रहेगा, तो सानू जीवन के अंदर कोई भी डुला नहीं सकता। जीवन के अंदर कदे भी सानू झुका नहीं सकेगा। झुकदा वो है जिस दे अंदर सच नहीं है। सिखां ने कुर्बानियां कीतियां सी, पिछे शहादतां की गाथा विचारी है। किहो जहे तसीहे दे दिते, पिता के सामने पुत्र का कलेजा पाड़िया गया, उसके मूँह विच पाया गया। पिता के सामने पिता के नाल इक्को ही चरखड़ी ते चढ़ के पिता पुत्र नूं घुमा के शहीद किया गया। मावां के सामने बच्चों के टुकड़े करके उन्होंने गलों विच
हार पाए पर किसी ने भी उन्हों की गुलामी जिहड़ी है वो स्वीकार नहीं की। जदों असीं इस सिद्धांत ते रहांगे फिर खालसे दे बोल बाले जिहड़े हन वो सदा दे वास्ते सचमुच ही उच्चे रहणगे, सदा चढ़दी कला दे विच रहणगे ते साडे उत्ते गुरु पातशाह जी की कृपा सदैव काल दे वास्ते बनी रहेगी। ये अरदास का पैरा जिहड़ा है पंजवां पैरा वो संपूर्ण होया है। एक बार इस पैरे नूं आपां पढ़िए फिर उस तो बाद समाप्ति है। अगली विचार जिहड़ी है वो 28 नवंबर तो आपां रल मिल करके आरंभ करनी है। कल तो प्रभात फेरियां अमृत वेले दीयां आरंभ हो रही हैं, इसलिए कल तो जिहड़ी लड़ीवार विचार है उसनूं 10 दिन के वास्ते रोकिया गया है। 28 तरीक तो दोबारा अगला जिहड़ा पैरा है अरदास दा सिखां नूं सिੱਖੀ दान वाला उसकी विचार आरंभ करांगे जी। एक बार इस पैरे नूं पढ़ के समाप्ति करिए जी। प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली